Good morning, everybody. I hope everybody can hear my voice and see the presentation on the screen. Excellent. So today we are going to take a look at data interpretation. Some of you might already have attended a few sessions of data interpretation. For some of you, this might be a very new topic, right? So it's always good to revise stuff. And so for those who have already maybe done a few examples of data interpretation before, this will be practice with examples. For those who haven't done it ever before, this is going to be a very interesting session. So data interpretation is nowadays becoming very, very important as a topic because it is practically there in every entrance examination, right? Whether it is law entrance exam or whether it is management or whether it is anything, it becomes a part of the entrance exam. And this is a topic of mathematics. Data interpretation is actually maths. And of course, maths itself is nothing but quantitative or numerical reasoning. But data interpretation questions normally make their appearance in the maths section. So CLAT has been asking data interpretation questions for some time now. Christ has always asked data interpretation as a separate section. IELTS में कभी-कभी data interpretation आ जाता है. Most of management entrance exams के अंदर, whether it is symbiosis or IPM or anything, data interpretation का एक set तो होता ही है. So what exactly is data interpretation? शाश्वत SATs में भी अगर maths का section है तो data interpretation आने के chances बहुत ज़्यादा हैं. So what exactly is data interpretation all about? Let's see that. So data is nothing but information, right? You collect information about various things. For example, when you are studying in schools, then all your names, your phone numbers, your email IDs, right? Your address, all that is information. Or if you're studying in the class and you give an exam, then the roll numbers of all the students, the marks scored by each student, all that is information. And when somebody collects it, stores it, it becomes data. So what do we do with this data? Whenever we collect data, we interpret it, right? First of all, we store it and we show that data to people. Now, data interpretation is nothing but an art, or sometimes it's even a science of presenting the given information in an easy manner, and the way it is presented, it can be used to analyze things. And in this world, it is very, very important for everybody to have good data interpretation skills, because whether we like it or not, we have data interpretation happening everywhere. So what exactly is data interpretation? What type of questions are based on this? Let's take a look at it. Now, data can be visually represented in the forms of graphs or charts. And I'm sure at school, at some point or other, you have worked with graphs or charts. So the easiest way of representing data, the first way, simple way of representing data is a tabular data representation, or what we call as table data. So यहाँ पे you can see there are three students, let's say Amar, Akbar, Anthony, and their subjects, there are four subjects: physics, chemistry, maths, biology. So how many marks they have scored? The exact information is present in this table. So if somebody asks, "Okay, Amar के chemistry में कितने आए?" तो easy, just look Amar and chemistry का coordinate and it is 94. Or somebody asks, Akbar के maths में कितने आए? You can say Akbar के maths में 99 आए. Or who got the highest in biology? So in biology, highest score is 95 and that belongs to Akbar. Or Anthony scored the highest in which subject? So Anthony scored the highest in physics, 100. So exact numerical value के साथ अगर खेलना है, then usually the table is presented and the data points are given. So where accuracy of numbers is required, you can present it in the form of a table. But presenting data in the form of a table also has its problems. यहाँ पे तो सिर्फ 3 बंदे हैं, 4 subjects हैं, so you can look at all the numbers. But supposing you want to find out that what is the average score, right? Or how many people are scoring more than some point of marks and how many are scoring less.
तो एक तो इस टेबल को ऑर्डर में अरेंज नहीं किया है, इट्स वेरी रैंडम द नंबर्स, right? And unless it is in a software like Excel where you can manipulate the data, you cannot see it. You cannot see कि average trend क्या है. So a tabular data representation is only useful when you have to put exact values and calculate things. There are other better visual ways of representing the data, right? So what other ways do we know? What the different types of graphs and charts? So a bar chart is actually a very good way of representing information. Now, again, it is very similar information to the previous one. Here there are 4 states and there are 3 different types of produce, or let us say pulses or grains, right? But here the exact number is not given, but you can see the trends. For example, if you want to say which is the largest production in Gujarat, तो 3 में से जो राइट हैंड साइड है उसको देख के इमीडिएटली यू कैन से ओके दैट रिप्रेजेंट्स ज्वार, सो द लार्जेस्ट प्रोडक्शन इन गुजरात इज ज्वार. और इफ समबडी आस्क्स राइस का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इन 4 स्टेट्स में से कहां पे हो रहा है, ऑल यू हैव टू डू इज आइडेंटिफाई द कलर फॉर राइस एंड फ्रॉम दैट आइडेंटिफाई कि सबसे बड़ा बार कौन से इसमें है. So simply I can say, okay, Tamil Nadu has the highest data point for rice. So the most number of rice is being done in Tamil Nadu. As simple as that. So different types of data points have different types of information which can be given. Are we together so far? Did we understand it so far? Are we understanding this so far? Yes. Okay, so yet another way of representing data. Let us take a look at one more way in which we can represent data, a line graph. Now, a line graph may not show you the exact trend. It may not show you the exact values, but it definitely shows you a trend. So supposing this graph represents the number of boys and the number of girls appearing in a particular exam like CLAT year after year, 2015, 16, 17, 18. So here the exact value of the numbers may not be clear, right? But trend wise you can easily identify कि 2015 से लेके 2016 there was a downward decline in the number of students. लेकिन 2016 से लेके 2018 में the number of students it increased, number of girls increased, number of boys also increased. So whenever you want to identify change in data and you want to look at it, इसको अगर मैं टेबल में दूंगा तो आपको थोड़ी देर सोचना पड़ेगा कि नंबर्स कैसे चेंज हो रहे हैं. बट हियर सिंपली बाय लुकिंग एट द ग्राफ यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि डेटा कौन से डायरेक्शन में जा रहा है. तो जहां पे ट्रेंड्स कोई चीज ऊपर नीचे अगर हो रही है तो वो कैसे कौन से डायरेक्शन में जा रही है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए अ लाइन ग्राफ इज द बेस्ट. Yes, did you understand this? Yes, Garvit, like I said in the beginning, but some of the examples may be new. You can hang around, the examples will be new, if at all. I'm not sure whether I've done these examples. Let's see. Okay, and pie charts. Now, the pie chart is one of the typical type of charts in which you always assume that the entire value of the pie is 100%, right? तो परसेंटेज ब्रेकडाउन अगर मुझे किसी चीज का देना है तो आई विल यूज अ पाई चार्ट फॉर दैट. सो यहां पे द फूड आई कैन इजीली सी इज द लार्जेस्ट थिंग विच इज आउट ऑफ द टोटल एक्सपेंस. देन सेकेंड लार्जेस्ट आई कैन सी इज रेंट, देन इट इज ट्रैवल, देन इट इज मिसलेनियस. ऑर्डर में ही है ये टोटल, राइट? एंड परसेंटेज वाइज अगर ब्रेकडाउन देखें तो 58 प्लस 23 plus 10 plus 9. 8 plus 3 is equal to 11 plus 9 is 20. 2 carry 7, 8, 9, 10. So the percentage always adds up to 100%, right? So अगर इसको percentage में लेना है तो obviously percentage is 100%. And because it is a circle, in circle we know that a circle is equal to 360 degrees. So always remember that 100% on a pie chart is represented by 360 degrees. So if 5% is to be shown, तो कितनी degrees होंगी? So it is nothing but 5 multiplied by 360 divided by 100.
0 0 cancel, 5 2s are 2 18s are. So if 5 degree is to be represented, 5% is to be represented, then 18 degrees will represent 5%. Are we together? Yes. So now number is asking what are these numbers 1.4, 1.2 in this chart? Okay. So 1.4. So let's see. 8.2. Let us assume that the 100% is. Let us take a look at it. 8.2, 3.2, 1.4 and 1.2. These are the actual numbers. Let's add and check. So 4, this is 0, 1 carry 9, 10, 11, 12, 13, 14. So what it means is that the actual total expense, if it is 14 lakhs, then 8.2 lakh rupees is 58%, 3.2 lakh rupees is 23%, 1.4 lakh is 10%, 1.2 lakh. So these numbers are actually the percentage values. Right? These numbers, these are the actual numerical values. Okay, if he's earning, let us say 14 lakhs, 14 लाख में से 8.2 लाख जा रहा है फूड की तरफ, 3.2 lakhs towards rent, 1.4 lakh towards travel, 1.2 lakhs towards miscellaneous. But giving these numbers 8.2 out of 14 is not very clear कि कितना percentage है. So the pie chart, it converts the numbers into percentage, right? So for example, if I say that my expenses, my total expenses is 14,000 rupees, that means 8,200 out of this is going towards food, right? So remember guys, this is a pie chart which represents 100%. So supposing X का income का chart ये 100% है, out of which 25% he spends on food, and this pie chart is of Y and he spends 10% of his total income on food. Then who is spending more money on food? X is spending 25% on food. Y is spending 10% on food. Who is spending more money out of these two people? Kaini, Shrikar, few of you are giving it right. Baki majority of the log locha maar rahe. Guys, see, मनी कौन ज्यादा स्पेंड कर रहा है, डिपेंड्स ऑन एक्चुअली कि पाई का टोटल वैल्यू कितना है. लेट मी अज्यूम कि एक्स इज अर्निंग 1,000 रुपीज, दैट मीन्स he will be spending 250 rupees on food. But supposing I say that Y is earning 1 lakh rupees, then iska 10% is also 10,000. So is 250 rupees more or is 10,000 rupees more? Guys, those who said X is the answer, याद रखो, पाई चार्ट आपको सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज वैल्यूज देता है. जब तक आपको ये नहीं पता कि वो परसेंटेज का बेस कितना है, यू कैनॉट कंपेयर टू डिफरेंट पाई चार्ट्स. क्योंकि 1000 का 25% सिर्फ 250 होता है, लेकिन 1 लाख का 10% 10,000 होता है. So you cannot compare two different pie charts if you do not know what is the base value of the percentages. सबको समझ में आया? You cannot say X is spending more because X का total income ही कम है. तो 25% of 1,000 is only 250, but 10% of 1 lakh is 10,000. So unless you know what is the value of the entire pie, you cannot compare two different pies. Guys, are we together on this? सबको समझ में आया ये फंडा? यस. सो रिमेंबर, पाई चार्ट में ट्रिक कहां पे होगा? अगर कोई ट्रिकी क्वेश्चन एग्जामिनर को सेट करना है, वो क्या करेगा? आपको 2 डिफरेंट पाइज दे देगा. पाई का रिलेशन क्या है या पाई का बेस कितना है वो नहीं बताएगा, एंड ही विल आस्क समथिंग लाइक दिस. एक में 25% होगा, एक में 15% होगा, और बोलेंगे कौन ज्यादा है, और हम बिना समझे 25% मार्क कर देंगे. बट यू कैनॉट कंपेयर टू डिफरेंट पाइज अनलेस एंड अंटिल यू नो वैल्यू ऑफ द टोटल पाई कितना है. ठीक है? सो प्लीज बी केयरफुल गाइस. पाई चार्ट ओनली गिव्स यू परसेंटेजेस. विदाउट नंबर्स यू कैनॉट इंटरप्रेट इट. हाँ, अगर पूछे हु स्पेंड्स अ लार्जर पोर्शन ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, ये एक्स एंड वाई एग्जांपल में क्वेश्चन का वर्डिंग ऐसा है कि हु स्पेंड्स अ लार्जर पोर्शन ऑफ हिज इनकम ऑन फूड. तो एक्स इज स्पेंडिंग 1/4 ऑफ हिज इनकम ऑन फूड,
जबकि Y स्पेंडिंग ओनली 1/10 ऑफ हिज इनकम ऑन फूड. सो ऐसे आप बोल सकते हो कि X स्पेंड्स अ लार्जर पोर्शन. न्यूमेरिकली कौन ज्यादा करता है वो नहीं पता, बट इफ दे आस्क के हु स्पेंड्स अ लार्जर पोर्शन, तो रेशियो में डेफिनेटली X इज स्पेंडिंग मोर. सो दैट कैन बी आंसर्ड. ये लास्ट वाला पॉइंट समझ में आया, व्हाट आई मीन बाय हु स्पेंड्स अ लार्जर पोर्शन ऑन फूड. वहां पे न्यूमेरिकल कंपैरिजन नहीं पूछा, वहां पे रेशियो पूछा है, एंड 1/4 इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 1/10. चलो बढ़िया. सो what I'm going to do is I'm going to take you through some very typical examples, right? And let's see who gets them very quickly. Be very careful. Data is very simple to understand, right? लेकिन सबसे बड़ा पंगा कहां पे होता है? If we do not read all the information and analyze it, तो हम silly mistakes करेंगे. Data interpretation में याद रखो guys, there are very few things that you need to know. One, either the question will be based on averages, simple averages, or the question will be based on simple ratios, or the questions will be simply based on some sort of percentage. And इन तीनों के अलावा maximum amount of time कहां पे जाएगा? Calculations पे. So there are only 4 topics of maths which are important if data interpretation is to be cracked, and these are the simplest topics. तो अगर simple averages अपने को अच्छे से आता है, if we properly understand the concept of ratios, and most importantly we know how to work with percentages, then along with it calculation की practice अगर ढंग से करेंगे, तो I guarantee you 100% score in the data interpretation section is very easy. ठीक है? So let's take a look at the first data. Now first I'm not putting any question, I'll put this data with each question, लेकिन पहले इस question को समझते हैं अपने. एक pie chart भी दिया है and एक टेबल भी दिया है. So what is this pie chart? This pie chart, it shows the number of employees who are there, right? And color के हिसाब से क्या है? 17% is accounts, 28% is production, 14% is HR, 13%, 23% is IT, and 18% is marketing department, right? Percentage split दिया है. Now ये भी देखो, have they given the total number of employees? तो राइट हैंड साइड में टेबल में देखेंगे, yes, they have given that the total number of employees is 1800. So by using this data that the total 100% is 1800, I can easily calculate the values of each department. यहां तक समझ में आया? So total number of employees in each department कितने हैं वो तो अपने कैलकुलेट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट टू आस्क अकाउंट्स के अंदर हाउ मेनी एम्प्लॉयज आर देयर, हाउ मेनी एम्प्लॉयज आर देयर इन अकाउंट्स? सो कैन यू टेल मी हाउ मेनी एम्प्लॉयज आर देयर इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट? गाइस यश यश लोचा मार रहे हो भाई. सबसे पहले तो मैंने टैबुलर डेटा का टेबल का जो इंफॉर्मेशन है वो तो अभी तक यूज ही नहीं किया. इसको तो टोटली इग्नोर करो, इसको इग्नोर करो. इस डेटा पे तो मैं आया भी नहीं हूं, इसको अभी के लिए इग्नोर करो. सी अकाउंट्स डिपार्टमेंट हैज 17% ऑफ द टोटल एम्प्लॉइज. सो करना क्या है? इफ 100% इज इक्वल टू 1800, देन 17% is equal to how much? So all I have to do is 17 multiplied by 1800 divided by 100. So 0, 0, 0, 0 mindu cancel. So 17 multiplied by 18 and 17 multiplied by 18 is 306. So accounts department के अंदर totally there are 306 employees. ये समझ में आया? ख्वाहिश कहां पे 1377 कहां से आया बेटा? Accounts department is simply 306. Did you get that? बच्चा लोग ये समझ में आया? ये अकाउंट्स में 306 एम्प्लॉयज कहां से हैं वो समझ में आया? ओके, सो विद यूजिंग द सेम कैलकुलेशन वी कैन फाइंड आउट कि प्रोडक्शन में कितने हैं, एचआर में कितने हैं, आईटी में कितने हैं, मार्केटिंग में कितने हैं. डोंट डू इट नाउ. Parnika, that is exactly what I have done.
17 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1800, दैट्स एग्जैक्टली, ये पोर्शन का ऐसे लिखा है आपने, इट्स एग्जैक्टली व्हाट आई हैव डन. हाँ, सो नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द इंफॉर्मेशन इन द टेबल. नाउ द टेबल, इट टेल्स मी द रेशियो बिटवीन मेन एंड विमेन, राइट? तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट पे ध्यान देते हैं. इट सेज देयर आर 2:7 men in the department, 2 men and 7 women. That means 9. Does it mean totally सिर्फ 2 आदमी और 7 औरतें हैं? Total 9 ही people हैं? No. It means that in the accounts department, 2 out of 9 are men and 7 out of 9 are women. That means actual number of men कितने होंगे? So total 306 जो है उसमें से 2/9 जो है वो मेन होंगे एंड टोटल 306 जो है उसके 7/9 विल बी विमेन. सो नाउ कैन यू टेल मी हाउ मेनी मेन आर देयर इन द डिपार्टमेंट? राइट? सो ये कैलकुलेशन अगर करेंगे तो क्विकली वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट देयर आर अ टोटल ऑफ 68 men in the department and 7/9 multiplied by 306 अगर करेंगे the value we get is 238. so there are 238 और क्विक चेक कर लेते हैं. 238 प्लस 68 कितना है? 8 + 8 16 0 3 306 मैच हो गया. दैट मीन्स हमने कैलकुलेशन सही किया है. सो नाउ आई कैन से that there are total of 68 men in the accounts department and there are 238 women in the accounts department. $68 कैसे आया? Quaish, let's see men and women, the ratio is given that men is to women, the ratio is 2:7. so that means total 2 + 7 is equal to 9. ये समझ में आया? दैट मीन्स कि अगर टोटल 9 लोग हैं तो उसमें से 2 मेन हैं. सो हियर टोटल 9 मीन्स उसमें से 2 विल बी मेन. सो अगर टोटल 306 हैं तो उसमें से मेन कितने होंगे? सो 306 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 9. दैट्स इट. यश अभी समझ में आया? ख्वाहिश समझ में आया? यू अंडरस्टैंड रेशियोज, राइट? रेशियो डज नॉट गिव यू द एग्जैक्ट नंबर. रेशियो आपको कंपैरिजन देता है कि अगर टोटल 9 लोग हैं उसमें से 2 विमेन हैं. सो टोटल अगर 306 लोग हैं तो विमेन कितने होंगे? मेन कितने होंगे? सो 306 मल्टीप्लाइड बाय 2/9. उसी तरह अगर विमेन निकालना है तो 306 मल्टीप्लाइड बाय 7/9. सिंपल रेशियो प्रोपोर्शन का फंडा है ये. लाइक आई सेड, रेशियो, परसेंटेज एंड एवरेज, ये 3 फंडे अगर स्ट्रॉन्ग करोगे तो ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू आंसर क्वेश्चंस ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन. तो इस डेटा को कैसे इंटरप्रेट करना है? डिड एवरीबॉडी अंडरस्टैंड इट सो फार? इज एवरीबॉडी विथ मी? इस डेटा को इंटरप्रेट कैसे करना है सबको समझ में आ गया? यस, वेरी गुड. चलो आगे बढ़ते हैं. सो नाउ क्वेश्चन, डेटा मैंने आपके सामने रख दिया है. द क्वेश्चन इज दिस: व्हाट इज द नंबर ऑफ मेन वर्किंग इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट? लेट्स सी क्विक. इसमें सिर्फ कैलकुलेशन करना है. क्या करना है वो तो मैंने आपको अकाउंट्स का करना है, जिस तरह हमने अपने ने अकाउंट्स के लिए किया था यूजिंग द सेम फंडा फॉर मार्केटिंग. सो आपको तो सिर्फ नंबर्स ही डालने हैं. इट ऑल डिपेंड्स ऑन हु क्विकली कैलकुलेट्स इट. If you are quick at calculation, you will very easily get the answer to this. वेरी गुड. हर्षित चेक करो बच्चा एक बार. जयशील नंबर में गड़बड़ मारा आपने. सिंगल कैलकुलेशन में आ जाएगा. राइट? गौतम 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 लोचा, स्वयं लोचा. यप पढ़ने का. चलो
एक झटके में कैलकुलेशन कैसे करते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन, सी नेवर एवर डू एक एक करके सारे कैलकुलेशन को एक सिंगल स्टेप में कैसे लेके आने का है. सो व्हाट डू आई नीड टू फाइंड आउट, आई नीड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मेन वर्किंग इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, राइट. तो अपने कहां से चालू करेंगे, टोटल लोग कितने हैं, टोटल पीपल आर 1800, उसमें से मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कितने हैं. सो आई नो दैट द मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज 18%. सो इसका 18/100 मुझे करना है, राइट. नाउ इसमें से अब आगे क्या करना है, आई नीड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मेन इन मार्केटिंग. सो द टोटल मेन इन मार्केटिंग इज 7 out of 12. So 1800 into 18/100 multiplied by 7/12. इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा. तो सिंप्लीफाई करते हैं, चलो 0 0 0 0, ये तो पूरा एलिमिनेट ही हो गया. वेरी गुड, राइट. 6 2s are 12, 6 3s are 18, सिंपल. 2 1s are 2, 2 9s are 18, simple. So if I simplify this, am I going to get the answer? So 3 7s are 21 multiplied by 9, 9 1s are 9, 9 2s are 18, आंसर आ गया 189. सो एक एक स्टेप में मत करो, सारे कैलकुलेशंस को एक झटके में आप सिंप्लीफाई कर सकते हो. डोंट सिंप्लीफाई इट इंडिविजुअली. पहले 18% ऑफ 1800 निकालोगे, सो फिर मल्टीप्लाइड बाय 7/12 करोगे, तो अलग अलग बहुत कैलकुलेशंस होंगे. उससे अच्छा एक सिंगल पॉइंट में तो सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे एंड इट बिकम्स वेरी इजी टू मल्टीप्लाई और डिवाइड स्मॉल नंबर्स. सो डोंट डू इट वन स्टेप एंड देन द अदर स्टेप, डू एवरीथिंग इन अ सिंगल स्टेप एट द एंड. डिड एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? सो 189 सिंपल कैलकुलेशन आ गया अपना, ठीक है. चलो सिमिलरली अब ये करो, द नंबर ऑफ मेन वर्किंग इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन forms what percent of the total number of employees working in that department. क्वेश्चन को समझना है, डेटा बड़ा सिंपल है, कैलकुलेशन ही करना है, बट क्या कैलकुलेट करना है वो फाइंड आउट करो. सो द नंबर ऑफ मेन वर्किंग इन प्रोडक्शन इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन दैट डिपार्टमेंट. पर्णिका 504 किधर से आया ना. 504, look at the options, their decimal values, their percentage values. Look at what question is asked. And ये orally कर सकते हैं. अंश टेंशन मत लो. See, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जितने लोग हैं उसमें से men का परसेंटेज क्या है, that's it. Did you get that? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जितने टोटल लोग काम कर रहे हैं उनमें से मेन का परसेंटेज कितना है. एंड बिलीव मी द कैलकुलेशन इज ओरल, इसमें आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है. कैलकुलेटर तो भूल जाओ, आपको पेन की भी जरूरत नहीं है. इट्स वेरी सिंपल, बट ऑफ कोर्स इट इज सिंपल इफ यू हैव डन योर होमवर्क. एंड व्हाट होमवर्क? रेसिप्रोकल्स वाला होमवर्क. लेट अस सी. सो प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, राइट. सो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में टोटल लोग कितने हैं, 11 + 1 12 लोग हैं. उसमें से फाइंड क्या करना है, 11 मेन है, तो 11/12 कितना होगा. अब 11/12 कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा. मैं क्या करूंगा, मैं 11/12 का बचा क्या, 1/12. 1/12 इज 8.33%. अगर रेसिप्रोकल्स याद किया है तो 1/12 इज 8.33%. तो 1 - 1/12 करूंगा तो 11/12 आ जाएगा. सो 100 - 8.33 करना है, 100 - 8.33 करना है. इससे इसमें भी कुछ नहीं करना है. 100 - 8 इज 92. 92 से और थोड़ा कम करोगे तो 91 पॉइंट समथिंग आएगा. एक ही ऑप्शन है 91 पॉइंट समथिंग, मार्क करो, आगे बढ़ो. बी इज माई आंसर. इतना तो मैं ओरली कर सकता हूं कि मेरा आंसर 92 से थोड़ा कम होगा, बिकॉज आई नो 1/12 इज 8 पॉइंट समथिंग. तो 100 में से 8 पॉइंट समथिंग कम करना है. सो 100 में से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 92. 92 से और थोड़ा डेसिमल कम करो तो 91 पॉइंट समथिंग, आंसर मिल गया. अनमोल 11 मल्टीप्लाइड बाय 8.33 तो कर सकते हो, बट इतनी मेहनत करनी क्यों है आपको? 100 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करना आसान है या 11 मल्टीप्लाइड बाय 8.33 आसान है?
राइट 11 पॉइंट. हाँ एग्जैक्टली मैत्री, वेरी गुड शाश्वत, आई डू इट. सी, एक एक स्टेप को समझो, और ये स्टेप तो मैं माइंड में कर सकता हूं, मैं सिर्फ पेन यूज कर रहा हूं बताने के लिए. डू वी अग्री दैट मेन आर नथिंग बट 11/12? दैट मीन्स विमेन आर नथिंग बट 1/12. दैट मीन्स टोटल इज 12/12. ये समझ में आ गया स्वयं शाश्वत? इतना समझ में आ गया? ये तो सिंपल है. सो कैन आई से माई टोटल इज नथिंग बट 100%? टोटल इज 100% ऑलवेज. यस, परसेंटेज में टोटल को 100 लेते हैं. तो विमेन कितने हैं इसमें? 11/12 मुझे नहीं पता, लेकिन 1/12 तो पता है. 1/12 इज 8.33%. रेसिप्रोकल्स करवाया है चंदन सर ने, आई एम श्योर. गौतम, आप इतना सारा करोगे, नंबर ऑफ मेन, ओ उड़ी बाबा, नंबर बेटा मर जाओगे वो कैलकुलेशन करते करते. यू आर वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम इफ यू आर फाइंडिंग द नंबर ऑफ मेन फर्स्ट एंड डिवाइडिंग बाय 100. टोटल वेस्टेज है. डोंट गौतम, डोंट डू इट. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, डोंट डू इट. पहले तो आपको ये फाइंड करना पड़ेगा कि प्रोडक्शन इज हाउ मच परसेंटेज. सो 28% ऑफ टोटल कितना है, पहले वो फाइंड करो. फिर उसका, अरे इतना लोचा क्यों कर रहे हो? मैं आपको ओरल सिंगल वन स्टेप मेथड बता रहा हूं. आई एम शोइंग यू द इजीएस्ट शॉर्टकट मेथड. पे अटेंशन. इतना समझ में आ गया कि टोटल इज 100% एंड वुमेन इज 8.33%, बिकॉज 1/12 इज 8.33. सिंपल. तो अगर मैं टोटल में से वुमेन को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेन मिल जाएगा. यस. नाउ 100 minus 8 is 92. 100 minus 8 is 92. और बचा क्या? 0.33. उसको भी सब्ट्रैक्ट करना है, तो आंसर विल बी 91 पॉइंट समथिंग. परफेक्ट नंबर चाहिए ही नहीं. क्यों? ऑप्शंस को देखो. अगर एक से ज्यादा ऑप्शन 91 पॉइंट समथिंग होता तो मुझे कैलकुलेट करना है ना. यहां पे एक ही ऑप्शन है 91 पॉइंट समथिंग. सो 91, 92 माइनस सम डेसिमल इज 91 पॉइंट समथिंग. मार्क करो बी, आगे बढ़ो. गॉट इट स्वयं, शाश्वत, गौतम? डेटा इंटरप्रिटेशन में यू कैन डू ऑल द लंबा कैलकुलेशंस, but it is designed to waste your time. Data interpretation में such short cuts are the ones which are going to save your time. And एग्जाम में जानबूझ के ये सारी चीजें डालते हैं. आंसर तो कोई भी लेके आएगा लंबे मेथड से, लेकिन ज्यादा क्वेश्चंस कौन सॉल्व कर पाएगा? जो ये सारे शॉर्टकट्स ट्रिक यूज करता है. एंड द एग्जामिनर इज वांटिंग टू सिलेक्ट दैट स्टूडेंट हु कैन इंटेलिजेंटली थिंक ऑफ दिस शॉर्टकट. दैट्स व्हाई आई एम शोइंग यू. नहीं होगा शाश्वत. 91.2 करके नन ऑफ दीज नहीं देंगे वो लोग. बिकॉज सी ऑप्शन में क्या लिखा है? राउंडेड ऑफ टू 2 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल. इट इज गिवन, यू हैव टू राउंड इट ऑफ. तो 91.67 तक तो ऑप्शन तो होगा ही होगा. 91.2 इज नॉट राउंडेड ऑफ, एंड वो देंगे भी नहीं ऐसा ऑप्शन. दे डोंट वांट एनी कंफ्यूजन देयर, because they are very clearly specified that it has to be rounded off to 2 digit after decimal. So actually the answer should be 91.66666. So rounding off it becomes 91.67. 91.2 is nowhere close to it. नहीं होगा. ठीक है? Because very clearly it is said rounded off to 2 decimal. Any answer other than 91.67 will not be acceptable. 91.5 is also not acceptable. 91.7 is also not acceptable, because very clearly question में लिखा है you have to round it to 2 digits. So 91.67 is the round off. समझ में आया? Anything other than 91.67 is not your answer. That's why you have to read the question very carefully. Here very clearly they have specified कैसे rounding कर सकते हो आप. ठीक है? चलो moving on. Next one. What is the respective ratio of the number of men working in accounts department of the total number of employees working in that department? सूछया. ऐसे क्वेश्चन को तो यार फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों को देना चाहिए. क्वेश्चन समझने में टाइम लगेगा, कैलकुलेशन तो कुछ भी नहीं है इसमें. यस, क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो कुछ भी नहीं करना है. What is the ratio of the number of men in accounts
टू द टोटल नंबर वर्किंग इन अकाउंट्स, अब भी हमने किया था मैन इन अकाउंट्स 2 टोटल 2 + 7, सो दिस इज 2/9 सी पक्का। गलती से ए मत मार्क कर देना, 9:2 उल्टा रेशियो है। सो मेन इज टू टोटल इज सिंपली 2:2 + 7। The only thing you will be making a mistake is 2 + 7 अगर करने में लोचा किया and I'm sure 2 + 7 कोई लोचा नहीं करने वाला है, because एक ही ऑप्शन है जिसमें फर्स्ट डिजिट इज 2. So 2 + 7 9, 2:9 आंसर सी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, गलती मत करो, आगे बढ़ो। समटाइम्स ऐसे पप्पू क्वेश्चंस भी आते हैं। होता क्या है, दे विल आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस पहले 3 क्वेश्चन शायद बहुत टफ हुआ होगा, कॉम्प्लिकेटेड, so your mind is subject is conditioned to think that ये बड़ा टफ सेट है, फिर चौथा क्वेश्चन जानबूझ के ऐसा पप्पू क्वेश्चन डालेंगे, यू विल वेस्ट 5 मिनट्स ट्राइंग टू आइडेंटिफाई कि इस क्वेश्चन के अंदर ट्विस्ट कहां पे है, जबकि कोई ट्विस्ट नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यू डोंट इवन नीड अ पेन, डेटा को देखो, आंसर को मार्क करो, आगे बढ़ो, राइट। सो नेवर एवर अज्यूम कि क्वेश्चन अगर सिंपल है तो कुछ लोचा है, नहीं हो सकता है क्वेश्चन इतना सिंपल है, द ट्रिक इज कि क्वेश्चन में कोई लोचा नहीं है, ठीक है। चलो, what is the respective ratio of women working in HR department and the total number of employees in that department? Exactly as the previous question. डेटा को सिर्फ देखना है। HR के अंदर नंबर ऑफ विमेन कितने हैं, रेशियो हिसाब से 3, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन दैट डिपार्टमेंट इज 1 + 3, 1 + 3 बच्चा लोग कितना होता है, 4। Answer is 3:4, as simple as that. भगवान भला करे अपना, राइट। ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर अगर एग्जाम में हो तो लड्डू लड्डू, एंड बिलीव मी 5 में से एक आध ऐसा क्वेश्चन निकलेगा। पर्पस क्या है, टू कंफ्यूज स्टूडेंट्स के ऐसे सिंपल क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हैं, राइट। वो कंफ्यूजन में ही लोग टाइम वेस्ट करेंगे। डोंट वेस्ट टाइम, इफ इट इज सिंपल इट इज सिंपल, भगवान का भला मानो और आगे बढ़ो। चलो नेक्स्ट वन। Now pay attention to this question. It looks simple, it is not. The number of women working in the IT department of the organization forms approximately what percentage of the total number of employees in the organization from all the departments together? No, Parnika. Others are getting it. You have to be very careful and understand your question. I'm happy most of you are getting it right. But एक दो अभी भी लोचे मार रहे हैं. Yes, Jay, perfect. So, अपने को समझना है, right? कि total number of employees, तो you will be tempted to use 1800. But we don't want an actual number. The answer which we are looking for is actually a percentage, right? So total percentage is nothing but 100. So 100 total में से IT डिपार्टमेंट के कितने हैं? IT डिपार्टमेंट is 23%. So 23 out of 100 is the IT department. Now number of women कितने हैं IT डिपार्टमेंट में? There are 4 out of 9. So 4 out of 9 in the IT department is this is the calculation to be done, as simple as this, right? So 23 into 4 कितना हुआ? 23 multiplied by 4 will be equal to 92. So 92 upon 900, इसको कोई simplification नहीं करना है, approximation 92 by 900 is approximately 1/10, which is equal to approximately 10%. Values बहुत दूर दूर हैं, simple approximation, answer is 10% roughly. समझ में आ गया सबको? अप्रोक्सीमेशन विल वर्क हियर। हाँ, ऑप्शंस बहुत पास में होते तो लोचा है। वंशिका, आई डू इट वंस अगेन। सी, क्वेश्चन में क्या पूछा है, जो टोटल ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज हैं उसमें से आईटी डिपार्टमेंट की औरतें कितनी हैं। सो आईटी डिपार्टमेंट में
there are 4 out of 9 women. ये समझ में आ गया? In the IT department, 4 out of 9 are women. Now, 4 out of 9 women are in 23% of the total organization, because IT का total is 23% of the whole. So 4 by 9 out of 23% are women. हाँ सूर्या, you can add up all the numbers and you will get 4 by 42. इतनी मेहनत करनी है लाइफ के अंदर आपको. Why do you want to add up all this? And remember, you cannot directly compare these numbers. You cannot directly compare these numbers. बेटा, आप इन सब numbers को add up करके बोल रहे हो. Are you adding up all these numbers? Surya, are you adding up all these numbers? You know, Surya, biggest mistake. You cannot add up all these numbers because 1 by 2 of 50 is 25, but 1 by 2 of 20 is only equal to 10. So you cannot direct, these ratios are not equal. If the number of people in each department was the same, तो आप इन numbers को directly add कर सकते हो, right? But the number of people in each department is not the same, so you cannot add these numbers together. समझ में आया सूर्या? समझ में आया? हाँ मैत्री, हाँ 10.22 ही आएगा. हाँ बट 1800, why do you want to mess with a big number like 1800? 100 से अगर काम चल जाता है तो 1800 से why are we messing it up? Because first you will need to find out 23% of 1800 एंड वापस यू कैलकुलेट पर ए से बी करके वापस बी से ए क्यों लेके आना है, राइट? बिकॉज अल्टीमेटली तो मुझे परसेंटेज में ही देना है. ओके वंशिका, अंडरस्टैंड इट. आई विल डू दिस वंस अगेन. आईटी डिपार्टमेंट में टोटल 100 लोग हैं, जिसमें से 23 आईटी में हैं. ये समझ में आया? द टोटल ऑर्गेनाइजेशन हैज 100 पीपल, out of which 23 are in IT, and out of these 23, 4 by 9 is women. So 4 by 9 of 23 is the percentage from the total organization. समझ में आया? Okay. Others, did everybody understand why 1800 is not required here? Because मुझे आंसर परसेंटेज में ही लेके आना है, और ये सारी जो वैल्यूज हैं ये भी परसेंटेज ही है. तो जब परसेंटेज वैल्यू ऑलरेडी है मेरे पास, तो परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट करके वापस नंबर को परसेंटेज में क्यों कन्वर्ट करूं? मेहनत है. कंप्लीटली एलिमिनेट. यू डायरेक्ट परसेंटेजेस आर अवेलेबल, सिंपली वर्क विद इट. डिड एवरीबॉडी गेट इट? यस. सो गाइस, डेटा इंटरप्रिटेशन में ऑलवेज रिमेंबर, बिफोर यू डू अ कैलकुलेशन, थिंक am I actually required to do all that calculation? या इसमें शॉर्टकट लग सकता है? And believe me guys, data interpretation में जो questions होंगे, they will be asking you questions where it is possible to apply some shortcut. जानबूझ के ऐसे questions देंगे जो एकदम बिना सोचे समझे प्रिपेयर करता है, अटेम्प्ट करता है, that person will get the right answer, but after wasting a lot of time. स्मार्ट बच्चा जिसने मेहनत के प्रैक्टिस किया है, ही विल आइडेंटिफाई, ओके इसमें तो ये ट्रिक लगा सकते हैं, इसमें और इसमें भी. यू डोंट हैव टू रिमेंबर, यू जस्ट हैव टू लॉजिकली थिंक, हाउ कैन आई वर्क एंड प्ले विद द नंबर्स. दैट्स इट. ठीक है जी. शाश्वत, डू यू अंडरस्टैंड दैट 100% इज द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन? Shashwat, 100% is the entire organization. 23 out of 100 are the total employees of IT. Yes. So 4 by 9th of 23 of 100 will be women of the organization. Did you get that, Shashwat? So because I have not introduced only 4 by 9 and 23. 100 भी तो इंट्रोड्यूस किया मैंने. परसेंटेज वाइज तो ये एंटायर ऑर्गेनाइजेशन का ही है ना. 4/9 of 23 of 100. That's what it means. So 4/9 of 23 of 100 will give me women of IT from the whole organization. Are you getting it? Like, see, let me put some simple numbers. Let's say total there are 100 employees.
आउट ऑफ विच डिपार्टमेंट ए के अंदर 50 है, डिपार्टमेंट बी के अंदर 50 है. इसमें से 10 आर मेन, 40 आर विमेन, एंड इसमें भी कोई स्प्लिट है. सो टोटल विमेन इन द ऑर्गेनाइजेशन कितने हैं? सो कैन आई से 4 out of 5 from 50%, that is half of 100, or literally can I say 4 out of 5, 50 out of 100. So the total number of women कितने हुए? कैलकुलेट करके देखो, आंसर मिल जाएगा. 40% आया कि नहीं इसमें? Now did you understand it guys? ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है. ये समझ में आया सबको? ठीक है, चलो. Now second type of examples based on tabular data. Now this is one of the trickiest questions if you do not read the data, right? So I'm going to give you just a minute. देख लो पूरा, कैलकुलेट कुछ मत करना, सिर्फ समझो कि क्या दिया है, and then I'll ask you some questions. Let's see who is able to interpret it correctly. क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन अगर सही किया तो ये सबसे इजी सेट है, और सबसे ज्यादा लफड़े भी इसी सेट में होंगे. सो बेसिकली दीज आर द स्कोर्स. स्टूडेंट का कोई एग्जाम का रिजल्ट है ये. 6 सब्जेक्ट, 6 स्टूडेंट्स, रिजल्ट दिया हुआ है आपको. Did everybody look at the data? You don't have to remember the numbers. Numbers तो आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगे. डेटा क्या है समझ में आ गया? I want to test whether you have correctly understood it. ठीक है? Now listen carefully and answer the question. How many marks did C for Chennai get in maths? How many marks did C for Chennai get in maths? 72. Everybody answered it. Very good. How many marks did D for Delhi get in chemistry? How many exact marks? Siddhant, marana locha, marana locha, marana locha. Majority of the students have interpreted it wrongly. बच्चा लोग, मैंने मार्क्स पूछे हैं. टोटल मार्क्स डी के कितने हैं? This is where you are making a problem. See, the table does not give you marks. This table is the percentage of marks. So when you are looking at it, every data tells you कि कितने में से है. So when I am asking कि how much did D score, D actually scored 80% of total 150. 80% of 150. That means he scored 80 out of 100 into 150. Right? So 0, 0, 0, 0 cancelled. 15 multiplied by 8 is equal to 120. So the actual marks scored by D is 120 in chemistry. This 80 is only the percentage of marks that he has got. Did everybody get it? ठीक है? I think everybody got it now. Those who got it right the first time, excellent. You paid attention to the data. और जिन्होंने गलत नंबर दिया उन्होंने लोचा मारा. Yes? Yes? So all this data is percentage. अब मैथ्स में डायरेक्टली 72 क्यों आंसर दे पाए? Because maths total is also 100. So 62% is 62 marks. 68% is 68 marks. So maths and English में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. Maths and English में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. Telugu and Hindi is also easy because 72 out of 100 and total 50 है. तो actual marks करने के लिए आपको सिर्फ आधा करना है. So actual marks is 36, 33, 34, 38, 36 and 31. Simple. हर स्कोर को हाफ कर दो. सिमिलरली हिंदी में भी मार्क्स को आधा कर दो, मिल जाएगा. तकलीफ कहां पे होगी? केमिस्ट्री इज स्टिल सिंपल बिकॉज 1.5 गुना. यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई दीज नंबर्स बाय 1.5.
The calculation trouble is in physics because here every number needs to be multiplied by 1.25 to get the exact score. But we will not be doing calculations because हम उतना ही calculate करेंगे जितना question के लिए जरूरी है. पहले से table को भरना जरूरी नहीं है. I'm just showing this to show you the interpretation. So now everybody, did you understand what all the data means so far? यहां तक समझ में आ गया? चलो अब ये ध्यान रखना, table is only giving you the percentage. Tell me, what is the average marks obtained by all the students in Hindi? And believe me, calculation है इसके अंदर. What is the average marks obtained by all the students in Hindi? हाँ गौतम, 5/4 exactly. Calculation, see, that's what I'm saying. You have to identify how to make the calculation easy. Yes, so far so good. There are two different ways of calculating it. I'll show you both ways and tell you which one is easy. See, लंबा मेथड क्या है? बिकॉज हिंदी इज आउट ऑफ 50, तो आपने सब कैलकुलेट किया कि 70 का आधा 35, 80 का आधा 40, 66 का आधा 33, 58 का आधा 29, 76 का आधा 38, 64 का आधा 32. इतनी मेहनत की, सबको ऐड किया, डिवाइड बाय 6 किया. मैं बोलता हूं सबको इंडिविजुअली 2 2 2 2 2 से ऐड मत करो, डायरेक्टली नंबर्स को ऐड कर दो. 6 + 8 + 6 + 4 24, 2 carry, 7 + 2 9, 17, 23, 28, 35, 41 एंड इसको फिर 2 से डिवाइड करो. सो आई गेट 207. राइट, सबको 2 से डिवाइड करके ऐड करूं, उससे अच्छा सबको ऐड करके एक बार 2 से डिवाइड करूं, मेहनत आधी हो गई मेरी. अब इसका एवरेज निकालना है, टोटल 6 डेटा पॉइंट्स, तो डिवाइड बाय 6 कर दो. So once I have to calculate 207 divided by 6, you will get the exact answer, right? 6 3s are 18, 2 carry forward, 6 4s are something 0.3, 6 5s are exact answer आ गया. 34.5 is my right answer. Yes, that's exactly what I did. Khwahish, see, Hindi total is out of 50. So instead of doing 70/2 plus 80/2 plus 66/2 and then finding the average, I simply did 2 को बाहर कॉमन निकाल दिया, तो पहले सबको ऐड कर दिया और फिर एक ही बार 2 से डिवाइड करना पड़ा और फिर 6 से डिवाइड किया. समझ में आया ख्वाहिश? बिकॉज द नंबर्स गिवन देयर परसेंटेज एंड आंसर हैज टू बी द मार्क्स. तो इंस्टेड ऑफ फर्स्ट डिवाइडिंग एवरी 2 से मैं 6 बार डिवाइड करूं, उससे अच्छा 2 को एक बार डिवाइड करो. सबको 2 से डिवाइड करना है तो ऐड करके एक बार डिवाइड कर दो. स्मार्ट इनफ. हाँ यश, डिवाइडेड बाय 12 भी कर सकते हैं, लेकिन 12 का टेबल आई एम नॉट श्योर एवरीबॉडी इज वेरी कॉन्फिडेंट. सो पहले 2 से करो और 6 से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर तो सेम ही आएगा. लेकिन 12 का टेबल सबको याद नहीं रहता है. 2 से करो और 6 से करो, सिंपल रहता है लाइफ को सिंपल रखने का. राइट, ओरली अगर मैं करना चाहूं तो भी मैं कर सकता हूं. इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग इट बाय 12, right, instead of dividing it by 12, what I can do is first I can divide by 2, then again I can divide by 2, and then I'll simply divide by 3, because 2 2s are 4, 3s are 12. So एक बार 12 से करो, लेकिन 12 का टेबल नहीं आता तो 2 और 6 से करो. 6 का भी टेबल नहीं आता तो 2 से करो, 2 से करो, 3 से करो. डिफरेंट वेज ऑफ कैलकुलेटिंग, विच एवर इज इजी फॉर यू. क्योंकि मेथड के मार्क्स नहीं होते, आंसर सही आना चाहिए. सो सबसे फास्ट जो आपके लिए है यूज करो. I hope everybody understood this one. बराबर 6. चलो, what is the total marks obtained by B in all these subjects together? Calculation intensive.
इसमें भी ओरली नहीं, एडिशन के लिए लिखना पड़ेगा, बट स्मार्ट कैलकुलेशन से कन्वर्जन आर वेरी इजी इन दिस. लेट्स सी हु गेट्स इट. मेहनत किए बिना फटाफट कौन लेके आता है इसमें ज्यादा? अनमोल. या बट डिवाइड नहीं, पॉइंट है. दैट डिवीजन सिंबल इज रॉन्ग. हाँ, कीबोर्ड में दोनों बाजू बाजू में, इसलिए मिस्टेक है. आई दैट स्लैश शुड बी अ पॉइंट. या वंश नहीं, चेक करो, लोचा मारा होगा. ठीक है, चलो. सबसे पहले तो बी के मुझे मार्क्स चाहिए. तो केमिस्ट्री में 865 हैं, बट 65 परसेंटेज कितना? 150. तो 50% यानी कि आधा ऐड करना है. तो 65 का आधा कितना हुआ? 32.5 ऐड कर दो. राइट. मैथ्स के अंदर 100 में से ही है, सिंपल, तो 68 रखो. तेलुगु में 50 में से है, यानी आधा करना है, तो 66 का आधा 33 कर दो. इंग्लिश में 100 में से है, इजी, 69 का 69 रखो. फिजिक्स का 125 में से है, तो जो 80 है उसमें 25% ज्यादा करना है. 25% मीन्स 1/4. So 80 का 1/4 is 20. So additionally add 20. And Hindi is out of 50. So 80 का आधा 40. Orally इतना आ गया, add करो सारा नंबर, आंसर पति ग्यू. Right? This is the first one, second one, third one, fourth one, fifth one and sixth one. Add all these numbers, you'll get your answer. सिर्फ और सिर्फ एडिशन में ध्यान देना है आपको. राइट. और इसमें भी कितना? सबसे पहले तो ऑप्शन डी को एलिमिनेट करो, बिकॉज डेसिमल पॉइंट के बाद तो सिर्फ 5 है. राइट. सो डी तो आंसर नहीं हो सकता. बाकी का कैलकुलेशन देख लेते हैं. 5 + 2 is 7, 7 + 8 is 15, 15 + 3 is 18, 18 + 9 is 27, 7. इसके आगे मैं कुछ कैलकुलेट ही नहीं करूंगा. क्यों? बिकॉज देयर इज ओनली वन ऑप्शन विच इज एंडिंग इन 7.5. अगर एक से ज्यादा ऑप्शन के लास्ट 2 डिजिट 7.5 हैं, तो मैं एक स्टेप आगे जाऊंगा. बट आई नो 7.5 से एंड करता हुआ एक ही आंसर है. सो इसके आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, मेहनत कम है. राइट. सिंपली मार्क ए एज द आंसर, मूव अहेड. समझ में आ गया? यूनिट डिजिट विल डायरेक्टली गिव यू द आंसर. यस मैत्री, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग. व्हाई वी डिड हाफ ऑफ ईच नंबर? पढ़ने का. सी बच्चा, केमिस्ट्री में आउट ऑफ 150 है, सो 65 इज 100%. तो 150 के लिए 50% ज्यादा करना पड़ेगा ना, तो इसका आधा ऐड करूंगा तो ये मिला के 150% हो गया. ये समझ में आया? बाकी 68 इज आउट ऑफ 100, तो ये तो डायरेक्टली 68 ही रखेंगे. 66% ऑफ 50, 50% यानी कि आधा. 66 तो 100 में से है, तो 50 में से तो 33 ही होगा. 69 आउट ऑफ 100, तो ये डायरेक्टली कर दिया. 80 इज आउट ऑफ 125, सो 80 आउट ऑफ 100 एंड बाकी एक्स्ट्रा 25%. 25% यानी कि 1/4. सो 80 का 1/4 करो तो आ गया आपका. एंड 40 आउट ऑफ 100, 50% है, तो 80 का आधा 40 कर दिया, हो गया मेरा आंसर. सो डिड एवरीबॉडी गेट दिस वन? यस. गौतम, डायरेक्ट क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट क्या किया आपने? हाँ, तो 3/, योर मल्टीप्लीकेशन इज फास्ट. राइट. आई एम शोइंग दिस फॉर पीपल हु आर नॉट दैट फास्ट. मल्टीप्लाइड बाय 3 में 3 का टेबल याद रखना पड़ेगा ना. मेरे को 3 का टेबल नहीं आता है, मेरे को सिर्फ 2 से डिवाइड करना आता है. आई एम जस्ट शोइंग एन अल्टरनेट मेथड ऑफ डूइंग इट. It all depends on what you're comfortable. Some people are comfortable with multiplication. So instead of doing this, you can do 65 multiplied by 1.5 or 3/2. Then direct plus 68 plus blah 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 blah. Whichever method is easy. समझ में आया? Okay. Physics वाला calculation. Okay. 80% out of 125 निकालना है. Can I say 80% of 100 and 80% of 25? So 80% of 100 is nothing but
80, 100 का 1/4 is 25, so 80 का 1/4 is 20, so हो गया 100 टोटल। या समझ में नहीं आया तो डू दिस, 125 into 100 multiplied by 80, एक्चुअल परसेंटेज तो ऐसे ही निकालोगे ना आप। सो दिस बिकम्स व्हाट, 5/4, 4 into 20, 20 into 5 is 100। परसेंटेजेस से खेलने में अगर तकलीफ हो रही है तो डू द स्टैंडर्ड मेथड, कंफ्यूजन कम होगा। इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड बाय द शॉर्टकट विच आई एम शोइंग, डू द स्टैंडर्ड। 3 सेकंड एक्स्ट्रा लगेंगे, आंसर सही आएगा। मेथड के मार्क्स नहीं होते बच्चा लोग, याद रखो, मेथड के मार्क्स नहीं होते। सो डोंट डू एनीथिंग जस्ट बिकॉज somebody has said that it is easy. For you it might be easy, for me it might be difficult, or vice versa, right? I am just showing you an alternate method of doing it. समझ में आया, easy लगा, यूज करो। नहीं समझ में आया, do go by the standard method. मेथड के कभी मार्क्स नहीं होते। If you are finding the shortcut which I am showing to be difficult, don't use it. आपका जो स्टैंडर्ड मेथड है उससे अगर आपका कंफर्ट ज्यादा है तो यूज इट, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। Did everybody understand it? Everybody, I hope you got it, right? Don't think कि किसी ने अगर कोई शॉर्टकट बता दिया तो कंपलसरी वो मेथड यूज करना है। ये स्कूल एग्जाम नहीं है कि जो मेथड होगा उसके भी मार्क्स मिलेंगे। एंट्रेंस एग्जाम्स में दे आर ओनली सीइंग आर यू स्मार्ट इनफ टू डू इट, राइट? आई होप एवरीबॉडी गॉट इट। चलो, what is F's percentage of marks in all the subjects together? F's percentage of marks in all the subjects together. लोचा, सबने मारा है लोचा। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने मारा है लोचा। वेरी फ्यू आर गिविंग मी द राइट आंसर। एवरीबडी इज मेकिंग द सेम कंसेप्चुअल मिस्टेक। ऑलमोस्ट एवरीबडी हैज मेड द सेम मिस्टेक। और मुझे लगा, एंड जानबूझ के वो ऑप्शन भी दिया गया है, जानबूझ के वो ऑप्शन भी दिया गया है। हाँ, सबने क्या किया कि ओवरऑल परसेंटेज ही निकालना है ना। 6% है तो करो 60 + 74 + 62 + 54 + 60 + 64, जो टोटल आएगा डिवाइड बाय 6 करो, आंसर आ गया 62.33। ये नो, दिस विल नॉट वर्क। Why will this not work? No, it's not, Nishka. Why will this not work? This will not work because it is not simple average. The base is different in every case. अगर ये सारे numbers out of 100 ही होते या out of the same base होते तो you could have found out just by adding and dividing by 6. But here, each of them is of different marks. This is what is known as weighted average. No, Maitri. This is known as weighted average. Weighted average का मतलब क्या होता है? F में it is actually 1.5 times 150. 74 is 100, so 1 time. 62 is only 0.58. 54 is 1. 60 is 1.25. And 64 is again 0.5. These are the weights, right? Each of the number का weight कितना है? So लंबा चौड़ा अगर करना है, you will have to do 1.5 into 60 plus 1 into 74 plus 0.5 into 62. ये पूरा add करो and then नीचे 1.5 plus 1 plus 0.5, ये पूरे 6 नंबर्स को ऐड करके then you will have to do the calculation. ये समझ में आया? This is weighted average. अगर लंबा मेथड करना है तो ऐसे कैलकुलेशन करेंगे। Are we together so far? यहां तक समझ में आया? I'm going to show you the faster method of doing it.
But weighted average में you cannot just add the numbers and divide by 6 because each percentage is of a different base. Guys, ये समझ में आया why we cannot add and divide by 6? तो कैसे करेंगे? Let's see. We found out it was very easy to calculate the values. तो 60 का 150% यानी 60 प्लस 30 90 हो गया. 74 वैसे का वैसा रहेगा. 62 का आधा करना है 31 कर दो. 54 वैसे का वैसा रहेगा. 60 का 1/4 ऐड करना है 75. 64 का आधा करना है 32. So his total marks is 4 plus 1 5 plus 4 9 9 plus 5 14 plus 2 16 1 carry forward 10 17 20 25 32 35. So इतना समझ में आ गया. His actual total score is 356, right? And base क्या हुआ? 150 plus 100 250 plus 50 300 plus 100 400 525 575. So 356 divided by 575. इसको कैलकुलेट करके मल्टीप्लाइड बाय अगर 100 करोगे, this will give you the actual answer, and that answer is equal to 61.91 approximately. 61.91, and hence your answer is option E. And जानबूझ के उन्होंने 62.33 भी दिया है. देखा, we know what mistakes students will make. तो जानबूझ के MCQs में वो wrong वाला ऑप्शन भी देंगे, and you will be so excited to see this value, you will mark this. But remember, you can only add and divide by 6 if the base of the average values are the same. सबके बेस अलग हैं. So this is a concept of weighted average. I think चंदन सर ने आपको करवाया है weighted average. The number of this is similar to alligation, जो mixtures and solution में alligation होता है, that is in weighted, that is a concept of weighted average. Yes, did everybody get this one? थोड़ा लंबा कैलकुलेशन है, but you will have to do it if you want to get the right answer. चलो, next one. If to pass the exam, the minimum marks required in chemistry is 120 and physics is 95, then how many students will pass in both the subjects? Why 575 गर्वित? बेटा टोटल 356 जो है, 356 जो कितने में से है? 150 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 100 प्लस 125 प्लस 50. करेक्ट? समझ में आया गर्वित? टोटल स्कोर में भाई मार्कशीट कैसे कैलकुलेट करते हैं? परसेंटेज, मार्क्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स ना. सो टोटल मार्क्स तो दिया हुआ है, उसी को तो ऐड करना है. हाँ, स्कूल में मार्कशीट में परसेंटेज ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं ना. 100 मार्क का भी पेपर हो सकता है, 50 मार्क का भी पेपर हो सकता है. तो अपने जितने मार्क्स मिले हैं उन सबको ऐड करो, मैक्सिमम मार्क्स जो है ऐड करो. दैट्स हाउ यू फाइंड द परसेंटेज. यस, चलो नेक्स्ट वन. अनमोल वेरी गुड. बाकी लोचा, गौतम करेक्ट, वंशिका करेक्ट, वंश यस. बड़ा सिंपल कैलकुलेशन है. कैलकुलेशन भी नहीं है, लॉजिकली सोचना है. आदित्य यस करेक्ट, वेरी गुड. काव्या 2 आंसर कहां से आ गए? चलो, इसमें एक्चुअली स्मार्टली स्मॉल करना है. If to pass the exam, the marks required in chemistry is 120 and physics is 95, then how many students will pass in both the subject? Both the subjects. यानी कि पहले मैं सिर्फ केमिस्ट्री चेक करूंगा. बंदा केमिस्ट्री में अगर पास हुआ है तो फिर जाके फिजिक्स का चेक करेंगे. लेकिन बंदा अगर केमिस्ट्री में फेल हो गया
तो फिजिक्स में तो मैं काउंट ही नहीं करूंगा, क्योंकि दोनों में पास होना जरूरी है। तो अगर केमिस्ट्री में वो पास नहीं हुआ तो फिजिक्स में पास होकर कोई फायदा नहीं है, बिकॉज दोनों में पास होना है। सो आई नीड टू गेट 120 मार्क्स आउट ऑफ केमिस्ट्री का टोटल कितना है 150, राइट? आई नीड टू गेट 120 मार्क्स आउट ऑफ 150. सो परसेंटेज वाइज 120 आउट ऑफ 150, इसको सिंप्लीफाई करो, दिस इज 4/5 विच मीन्स 80%. सो I need 80%. So A has qualified because 80 से ज्यादा है, D has qualified just 80 है, and E has qualified, right? So सिर्फ 3 ही स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पास किया। तो B, C and F का तो फिजिक्स देखना जरूरी ही नहीं है। B, C and F के लिए तो मुझे फिजिक्स देखना ही नहीं है। I only need to check A, D and E में से कितनों ने पास किया है। सो आई नीड टू गेट 95 आउट ऑफ 125. दैट मीन्स 100 में से कितना होना चाहिए, राइट? सो आउट ऑफ 125 इफ द स्टूडेंट शुड गेट 95, सो परसेंटेज 100 में से कितना होना चाहिए। अब इतनी मेहनत नहीं करूंगा, 125 में से 1/5 कम करो, राइट? 125 का 25 कितना है 1/5. सो 125 में से 1/5 कम करो तो 100 आ गया. सो 95 डिवाइडेड बाय 5 कितना होगा 19. 95 में से 1/5 19 को कम करूंगा तो 76 आ गया. दैट्स इट. 76 से ज्यादा किसके स्कोर हैं? ए बेचारा फेल हो गया. सॉरी, किसका देखना है? फिजिक्स का देखना है ना. फिजिक्स. ओके, सो ए बेचारा 76 उससे नीचे है, सो ए इज आउट. डी 90, वेरी गुड, 76 से ज्यादा. ई 70, बहुत कम, पति क्यू. देयर इज ओनली वन स्टूडेंट who is getting both the required marks, so only one student is actually qualifying. That's it. So exactly one student will pass in both the subjects according to the criteria. समझ में आ गया? पर्णिका, see 120 and यार शुभंकर दिल पे मत ले यार, तो दिल पे मत ले. तेरा नाम अगर मिस हो गया तो दिल पे मत ले. हाँ, तूने करेक्ट आंसर किया है, टेंशन मत ले. See, chemistry में you need minimum 120 out of 150. That means 80% is required to pass. ये समझ में आया पढ़ने का? 80% is required to pass. Did you get the first 80% वाला फंडा? You need 120 marks in chemistry, right? Chemistry का total is 150. So 120 divided by 150 is how much percentage? Please tell me you know how percentages work. 150 में से 120, 100 में से कितना? 100 into 120 divided by 150. This is equal to 80. Right? So I know chemistry में the requirement is 80%. So B फेल, C फेल, F फेल. केमिस्ट्री में फेल हो गए ये ले, तो सिर्फ A, D एंड E केमिस्ट्री में पास हुए. यस, तो मुझे अभी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स चाहिए. तो A, D एंड E हैव क्लियर्ड केमिस्ट्री. सो हाउ मच हैव क्लियर्ड फिजिक्स? सो 95% ऑफ 95 मार्क्स आउट ऑफ 125 कितना होगा? So find percentage. 95 into 100 divided by 125. That will give you 76%. So A केमिस्ट्री में तो पास है लेकिन फिजिक्स में फेल है, 76 से कम है. सिमिलरली E भी 76 से कम है. Only D is 76 से ज्यादा. So D has passed both in chemistry and physics. Did you get it, Parnika? Did everybody else also understand this? It's actually a very simple example. लेकिन क्योंकि ये सारे वैल्यूज के बाजू उन्होंने परसेंटेज सिंबल नहीं डाला है तो अपना माइंड कंफ्यूज कर जाएगा, हम लोचा मारेंगे. We will assume these are the marks. These are not the marks. These are the percentages. ठीक है, चलो
Who among the following scored the highest marks in all the subject together? जय माता दी. बहुत मेहनत वाला सम है. बहुत ज्यादा मेहनत वाला सम है. In this question, in the exam, if I'm running short of time, the smart thing will be to leave it for the end. Because इस क्वेश्चन में आंसर लाना बहुत आसान है, लेकिन कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है इसके अंदर. You need tons of calculation in this, right? Because you need to add up each row after calculating the exact values. You need to add up each row after calculating the scores. So पहले तो सबका individual score निकालो, 36 values, and then add up each row and then compare. Smart thing will be to leave this question for the end. सारे बाकी का पेपर सॉल्व हो जाए और फिर टाइम बचता है तो you can come back to this question. क्वेश्चन पेपर में बीच में बैठ के सॉल्व करोगे, मिनिमम 4 से 5 मिनट वेस्ट करेगा ये क्वेश्चन एंड पेपर छूटेगा. So I'm not saying leave the question. I'm saying leave it for the end. Today we will be solving it. Of course, today you will be solving it. But you will not be doing it in the exam in the middle of the paper. Paper में end में करो. ना बच्चा लोग ना, your guesstimates are option. Yeah, Shrikar, that is yes. So that is a very good way of doing it. टूटून्स क्या होता है? कुछ टूटून्स क्या होता है? टूटून्स गवर्नमेंट अलाउ करे. फर्स्ट ऑफ ऑल तो गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू अलाउ. सेकंड, इवन इफ इट अलाउस, वैक्सीनेशन जब तक नहीं होता, तेरे को अपने जान की पता नहीं, मेरे को अपने जान की बहुत पड़ी है, राइट? आई वॉन्ट माई सेल्फ टू बी सेफ. सो वी विल ओनली टेक अ कॉल आफ्टर वी हैव मोर information on whether we'll be physically opening classes or not. Because even right now, not everybody is comfortable without the vaccination. Even if vaccination comes only after total vaccination. So if at all we will be opening, we'll make sure that you guys are vaccinated. Will you guys be vaccinated? Then we will think. चलो. So approximation में जाना है, क्या करें? F सबसे पहले तो ऑप्शंस देखो. ऑप्शंस में सी भाई साहब तो है ही नहीं, राइट? तो सी इज नॉट माय आंसर. सी का तो कैलकुलेशन करना ही नहीं है, बिकॉज सी इज डेफिनेटली नॉट द हाईएस्ट स्कोरर. अब एफ को देखो. एफ के अंदर एक भी वैल्यू 70 के ऊपर नहीं है. ये बंदा सब 60s एंड 50s एंड मैक्सिमम 74 है. सो और बाकी के कंपैरिजन में जब आप ई डी ए उन सबको देखो तो इसका वैल्यू तो बहुत ही लो है. 70 से तो ज्यादा स्कोर, 74 से तो ज्यादा गया नहीं है. तो एफ कैन सेफली बी एलिमिनेटेड, राइट? एफ इज सेफली एलिमिनेटेड. अब बाकी का कंपैरिजन करते हैं. चलो, ए को अगर देखो तो ए का मैक्सिमम स्कोर 85 है, लेकिन मोस्टली 60s एंड 70s में है, राइट? मोस्टली 60s एंड 70s के अंदर है. एंड सिमिलरली बी का अगर देखो तो दो 80s में है, लेकिन मैक्सिमम 60s में है. तो A and B may also be safely eliminated. A and B can also be safely eliminated. अब थोड़ा you will need to take a look. E and D का कंपैरिजन करो. E and D का कंपैरिजन करो. The लफड़ा क्या है कि D has one low score of 58. E का lowest score is only 66, right? And दोनों के हाईएस्ट स्कोर 90s में है. बाकी 80s कंपैरिजेबल है, 78, 76, 72, 82, ये सर आपको लगेगा, राइट? एंड यू मे बिकॉज ऑफ 58 बी टेम्प्टेड टू मार्क के D इज लेस देन E. सो हियर what you should remember is this 58% is out of a lower base, right? So he's actually not losing many marks here. And this person's 90 is out of 125. This person's 90 is out of 150. So now you should not take a risk. 4 तो आपने एलिमिनेट कर दिए ना, इन दोनों का कैलकुलेशन कर लो and you will find out that the answer is actually C. Student D has the highest score.
यू माइट बी टेम्पटेड टू मार्क ई बिकॉज डी का एक 58% है जो कम लग रहा है, बट 58% ऑफ 50 ही इज नॉट एक्चुअली लूजिंग मेनी मार्क्स. सो हियर 4 को एलिमिनेट कर दिया, 2 में कैलकुलेशन कर लो, यू विल गेट द राइट आंसर. यस, डू यू गेट दैट? कुछ टोटल इम्यूनाइजेशन ना हो तो भी हर्ड इम्यूनिटी विल बी आफ्टर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल आर इनोकुलेटेड. तेरा ना हो तो भी मेरा तो पहला हो जाए. So we will this season 2021 mid तक तो I'm not expecting anything. Yeah, even the Sarkar will not open. After that we'll take a call. But assume the worst. Assume the worst. अभी तो हम नहीं ही जा रहे. सूर्य आई एम 50 प्लस कोई चांस ही नहीं है बेटा. 50 प्लस बुढ़ा लगता हूं क्या मैं? No Madhav, you cannot get the total because again weighted average. You cannot add these numbers directly because weighted average. A person getting 90% out in 150 and a person getting 90% in only 50% are two different scores. 90% of 150 is not the same as 90% of 100. So you cannot simply add up these percentages because weighted average. हाँ, weight करके अगर add करते हो तो अलग बात है, but उसमें मेहनत ज्यादा है. You cannot simply add these numbers. समझ में आया? यस, हम साथ साथ हैं. कैलकुलेशंस वाले समझ में आ गए इसके? चलो, we'll simply take a look at one छोटा एग्जाम्पल. राइट, इसमें क्वेश्चंस नहीं, इसमें सिर्फ अगर डेटा समझ में आ जाए तो आंसर्स तो बड़े सिंपल हैं. सो आई जस्ट वांट द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस डेटा कि कैसे, एंड दिस इज अ वर्ड प्रॉब्लम. राइट, डेटा कभी कभी वर्ड में भी दिया जाएगा. छोटा है, हाँ, टेक्निकली छोटा है प्रसन्ना. नंबर ऑफ वर्ड्स डोंट काउंट एज बड़ा या छोटा. कभी कभी आई कैन गिव, आई यूज्ड टू हैव अ प्रोफेसर जो एक लाइन के 8 क्वेश्चंस पूछते थे. एक लाइन के 8 क्वेश्चंस पूछते थे एंड इट यूज्ड टू टेक ऑन एन एवरेज 16 आवर्स टू सॉल्व दैट पेपर. 16 आवर्स. एंड दूसरे प्रोफेसर थे जो 3 पेज के एक क्वेश्चन पूछते थे, आधे घंटे में पेपर खत्म. ठीक है? सो डोंट गो बाय द साइज. छोटा मींस कैलकुलेशन इजी. चलो, in a college there are 1400 students doing graduation in any one of the subject. There are 5 subjects: zoology, botany, maths, physics and statistics. Okay, and the ratio of the number of boys and girls among them is 6:8. Now all the individual data is given, percentage, and so on and so forth. Right? So how TC beta TC virtual tour क्या होता है गौतम? Gautam wants a virtual tour of IQ ideas. Why do you want a virtual tour? You just want to see. अभी तो even I am not at office. मैं भी घर पे बैठा हूँ. Why do you want to see my office? Why? Anyway, okay. So this is the easiest way to solve this is first to make a table. इस सारे डेटा को अगर मैं टेबल फॉर्मेट में बना दूं तो it will be easy to solve. तो टेबल बनाया हमने, राइट? फाउंड्स क्या होता है? कुछ डाउट्स. बेटा डाउट्स भी, अभी भी डाउट्स के लिए तू तो आ जाएगा सेंटर पे, मैं ही सेंटर पे नहीं आता हूं. किससे सॉल्व करवाएगा? फ्रंट डेस्क से, स्वाति मैडम से. डाउट्स के लिए मैं खुद ऑफिस नहीं आता हूं. एंड व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप्स इसीलिए तो बनाए हैं हमने कि यू कैन गेट द डाउट सॉल्व्ड. As of now, तो we cannot allow students simply because permit is not there. Right? तो अभी तो get used to online classes because even a lot of colleges are running online. Only final year students are going to college. तो इस साल क्रैक करके आप जाओ. बेटा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है कोई. व्हाट्सएप नंबर जिसमें से आपको इंडिविजुअल मैसेजेस आते हैं उसी में से आपको वापस रिप्लाई करना है. 7600666611 जहां से आपको शेड्यूल मिलता है उसी नंबर पे रिस्पॉन्ड करना है. ग्रुप सिर्फ टेलीग्राम पे है, व्हाट्सएप पे सिंगल 1-on-1 कॉन्वर्सेशन है. श्रीकर, माँ चीज इस जनरेशन को टेक जनरेशन कौन बोलता है? ठीक है, चलो सी 1400 टोटल स्टूडेंट्स हैं एंड 5 सब्जेक्ट्स हैं. द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज गिवन कि बॉयज इज 6, गर्ल्स इज 8. 6 + 8 टोटल 14. तो यहां से सिंपली मुझे मिल गया कि टोटल देयर आर 800 गर्ल्स एंड टोटल देयर आर 600 बॉयज. समझ में आया? ये डेटा समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? हाँ, चलो अभी. सो पहला डेटा मैंने यूज कर दिया.
30% of the total girls are doing graduation in zoology. तो 80 का 10%, 800 का 10% is 80. If 10% is 80, then 30% इसका 3 times, so 240. So that means there are 240 girls in zoology so far, right? And 20% of total girls are graduation in statistics. So 10% is 80, 20%, there are 160 girls in statistics. ये समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? हम साथ साथ हैं? चलो, सो ये डेटा भी हमने यूज कर दिया है. Now the total number of students doing graduation in botany is 220. So botany का total is 220. Girls कितने हैं? यश 10% क्यों किया? बेटा अगर 30% कैलकुलेट करना है, कैन आई डू 3 मल्टीप्लाइड बाय 10%? 20% अगर कैलकुलेट करना है, कैन आई डू 2 मल्टीप्लाइड बाय 10%? एंड 10% के लिए सिर्फ एक जीरो ही तो हटाना होता है. 800 का 10%, एक जीरो कम कर दो 80. ओरल कैलकुलेशन के लिए, हाँ ओरल कैलकुलेशन हमेशा याद रखो. ओरल कैलकुलेशन बेस्ट कैलकुलेशन इन द वर्ल्ड. सो 10% इज द इजीएस्ट परसेंटेज, और 10 के हिसाब से आप बाकी नंबर्स कैलकुलेट कर सकते हो. दैट्स व्हाई आई ऑलवेज डू 10% फर्स्ट. ठीक है, चलो. सो बॉटनी का मिल गया. नाउ 250 स्टूडेंट्स आर डूइंग ग्रेजुएशन इन मैथ्स. सो मैथ्स का टोटल 250 डायरेक्टली दिया हुआ है. नाउ रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स and the number of boys doing graduation in statistics is 2:1. Number of girls is to number of boys is 2:1. तो total ये 160 है. That means 160 का आधा 80 होगा. And 160 plus 80 total statistics में 240 बच्चे हैं. Right? So ratio statistics का हो गया. 20% of total number of boys are doing graduation in botany. Boys का total is 600. 10% is 60. So 20% will be 120. So 120 अगर botany में है, 220 में से 120 boys हैं, तो 100 girls होंगी. हम साथ साथ हैं? यहां तक समझ में आया? ये समझ में आया? Excellent. Now, so 20% ये हो गया. The ratio of the number of girls and boys, number of girls to boys in maths is 2:3. So ये अगर 2:3 है, total कितना है? 5, right? If 5 is 250, then this 2:3 will be 100 and 150. 2 out of 5, 40%. ये 100, ये 150. सो मैथ्स का भी डेटा आ गया. देर आर इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन फिजिक्स. फिजिक्स का टोटल नहीं पता, लेकिन टोटल पता हो तो बॉयज एंड गर्ल्स सेम है. एंड इट सेज 290 स्टूडेंट्स आर डूइंग ग्रेजुएशन इन जुओलॉजी. सो अगर 290 स्टूडेंट्स जुओलॉजी में है, जिसमें से 240 आर गर्ल्स, दैट मीन्स 50 आर बॉयज. अब फिजिक्स में कितने हैं? 800 में से बाकी के नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर दो. 240 प्लस 100, 340 प्लस 100, 440, 440 प्लस 160 इज 600. तो 800 में से 600 का हिसाब मिल गया है, बाकी 200 यहां पे होंगे. सिमिलरली दोनों सेम है, तो ये भी 200 होगा. एंड ये कैलकुलेशन देख लें. 50 प्लस 120 इज 170. 170 plus 150 is 320. 320 plus 200 is 520 plus 80 600. हिसाब पूरा. एंड 200 plus 200 टोटल इज 400. ये कैलकुलेशन करके देख लो, 1400 होना चाहिए. पूरा टेबल मिल गया. यहां तक सबको समझ में आ गया? नहीं आया मैं पूरा करूंगा एक बार फिर से. बट एवरीबॉडी इज टुगेदर टिल नाउ. चलो मैं पूरा टेबल एक बार फिर से समझाता हूं, बट पे वेरी क्लोज अटेंशन टू दिस. पे वेरी क्लोज अटेंशन. द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 1400 एंड द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 6:8. 6 plus 8 is 14. So 14 is 1400. So गर्ल्स का टोटल हो गया 800, बॉयज का टोटल हो गया 600. यहां तक समझ में आया?
गौतम इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, टेबल पूरा हो गया तो एनी क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड, सो आई हैव नॉट पुट एनी क्वेश्चन इन दिस, इट्स ओनली फिलिंग इन द ब्लैंक्स इन द टेबल. यू आर डन फॉर दिस, बट स्टे ऑन बिकॉज सेम सेशन आईडी कंटिन्यू होगा. ये समझ में आ गया बाकी को? 800 600 पहला पॉइंट. दोज आर हैविंग डाउट्स, ये पहले समझ में आया. टोटल बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है. चलो नाउ 30% of total girls are in zoology. So 30% of 800 is 240 and 20% of total girls are statistics. So 20% of 800 is 160. यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? Yes, okay. So first point जो मेरे को इंफॉर्मेशन दिया है दैट इज सॉल्व्ड. नाउ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डूइंग ग्रेजुएशन इन बॉटनी, टोटल ऑफ बॉटनी इज 220 एंड 250 इन मैथ्स. सो मैथ्स में 250 हैं. ये नंबर्स तो डायरेक्टली दिए हुए हैं, समझ में आ गया? आर वी टुगेदर यहां तक? ओके. नाउ the ratio of girls and boys in statistics is 2:1. So 2:1 ratio है, तो ये डबल है इसका या ये इसका आधा है. So 160 का आधा 80. So 2:1 रेशियो हो गया एंड 160 प्लस 80 स्टैटिस्टिक्स का टोटल 240 मिल गया. ये समझ में आया? एनी कंफ्यूजन इन दिस? Any confusion in this? I hope there is no confusion. ठीक है. Now the ratio, now 20% of total boys in botany, total boys 60 है, उसका 20% 120 botany के अंदर होगा. So total botany में 220 हैं, जिसमें से 120 are boys. So 220 minus 120, 100 will be girls. Did you get this? I hope everybody got this one. I hope everybody got, यहां तक समझ में आया? चलो. Now, the ratio of the number of girls and boys is 2:3. So number of girls is to boys is 2:3. So 2:3 total is 5. So total 5x is 250. तो x की वैल्यू क्या है? X की वैल्यू will be 50. 50 multiplied by 5 is 250. So total 5x is 250. X is 50. So 2x, 2 multiplied by 50 is 100. 3x, 3 multiplied by 50 is 150. ये मिल गया. मैथ्स का जिसको लोचा पड़ रहा था, ये समझ में आ गया? यस. चलो अब आगे बढ़ने से पहले हम क्या कर सकते हैं? 800 इज द टोटल, तो 240 100 100 160 इतना तो सारा आ गया. एक ही बचा है. सो 240 प्लस 100 340, 340 प्लस 100 440, 440 प्लस 160 600. 800 में से 600 फिट हो गए हैं, तो जो 200 रिमेनिंग है वो यहां पे होंगे. अमनबीर, वाई 5x? बेटा मैथ्स में अगर गर्ल्स 2 हैं एंड बॉयज अगर 3 हैं तो टोटल कितना होगा? 5. ये समझ में आया? गर्ल्स एंड बॉयज का रेशियो 2 and 3 है, तो टोटल नंबर इज 5. ये समझ में आया? यहां तक समझ में आया? टोटल 5. हाँ रुको, डिड यू अंडरस्टैंड 2 and 3, 2 3 and 5 का सिग्निफिकेंस क्या है? ओके. नाउ इट डज नॉट मीन देयर आर 2 boys 2 girls 3 boys and 5 students. It means there are 2 multiplied by x boys, 2 multiplied by x girls, 3 multiplied by x boys, and total there are 5x students. रेशियो का फंडा ही ये है. These numbers are actually comparisons. They are not the exact numbers. So actually 2x boys, 2x girls, 3x boys and 5x students. ये समझ में आया? हाँ हार्दी, that's exactly what I'm. हाँ वही तो करना है. So total of maths we already know is 250. So can I say 5x is actually 250?
so can I say x is equal to 50? So girls निकालना है तो करो, बॉयज निकालना है करो. और अगर x में कंफ्यूजन हो रहा है, you can simply say girls are 2/5 of total and boys are 3/5 of total. टोटल की वैल्यू डाल दो 250, आंसर आ जाएगा. x में कंफ्यूजन ही नहीं है. यहां तक ये समझ में आ गया? Different method of looking at it, right? Okay. Finally, it says equal number of boys and girls in physics. So 200 मिल गया, so ये भी 200 होगा. एंड जूलॉजी में टोटल 290 है, जिसमें से 240 का हिसाब है, तो बचा कुचा 50. टेबल इज कंप्लीट. डिड एवरीबॉडी गेट दिस वन? Did everybody get this one? Yes, Aditya, it is exact. Data interpretation is always many a times like a puzzle. अब इस पे कोई भी क्वेश्चन पूछे, जब सारे नंबर्स हैं आपके पास, आंसर लेने में 10 सेकंड लगेंगे. So there's no point in doing any question on this. Questions तो solve हो ही जाएंगे. The important part was filling in this table. ठीक है? Okay, guys. So we are going to continue with this same ID password, but I'm giving you a 5-minute break. 9:36 at 9:40 precisely we will restart in this same ID. So the same ID password for this session. Firdaus sir will be continuing at 9:40. I think Firdaus sir is already here, but I'll be giving you a break right 9:40. You are expected to join back.